Okay, let's start with time series. So in time series, you have to learn basically three different method, three different types. Let me open the exercise. Exercise 4.1. There is only one exercise here. Uh, hmm, time series. There are majority three types of questions are there. The first one is graphical method. Second one is moving average. And the third one is trend line by using least square method. Equation of trend line by using least square method. Least square method. So in this chapter, you have to do with this three method: graphical method, moving average, and equation of trend line by using least square method. So I will start one by one. We have the first question. There is only one formula. I'll let you know. Okay. Okay. So we have a question, and every question you will have a table. Using the table, we can solve the question. First, the following data gives the production of bleaching powder in 1,000 tons for the year 1962 to 1972. तो यहाँ पे मेरे पास टेबल दिया कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो रिप्रेजेंट द ईयर and second row represent the production. Fit a trend line by graphical method. So here we are starting with the first method, graphical method. So how will you do the graphical method? First, I'm writing the question over here. In the first question, we have an year, and first row is year, second row is production, and this is fixed for every question. First is always an year only, matlab 1971, 1962, whatever it is, year is only the first row, and the second will be the production. It can be output, it can be expenditure, it can be income, whatever. So with respect to time, how the thing changes, it is given in the question. Matlab time series means time related questions रहेंगे. तो टाइम का सीरीज बना लो, 1962 से स्टार्ट हुआ है और एंड 1972 पे हुआ है. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 and 72. Write down the values: 0, 0, 1, 1,
4, 2, 4, 9, 7, 10, and 8. So the first we have to solve using the graphical method. So here I am showing there is no calculation, just we need to plot the graph, and that graph you have to plot on a ruled paper only, not the graph one. Graph पे draw नहीं करना है. Graphical method. Graphical method. So how will you do graphical method? You have to draw x and y axis first. Okay. So just write down the year on x axis. Year on x axis. This is my 0. Okay. So let's start. Values kahan se start, or it is 1962. So put a crink on it. If you're starting some random value, put a crink on it. So I'm starting with 1962. Then 60. Actually, I'll just do it like this. No. This is better. 1962, 1963, 1964, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. This is my x-axis which represent the time, that is years, period. So हमेशा x-axis will represent the period. Y-axis पे it is given as production. So I will write the production. और प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम 10 तक गया. तो मतलब मुझे 10 तक जाना पड़ेगा. तो आई विल टेक इट, दिस इज माय पॉइंट 2, 4, 6, 8, 10. This is my production and it is given as in 1000 ton. So here we'll write in 1000 ton. ओके, लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग. बस अभी कुछ करना नहीं, जो भी टेबल दिया था उसकी वैल्यूज मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिए. नाउ विल हैव टू प्लॉट. प्लॉट कैसे करेंगे? सबसे पहले 1962 पे 0 दिया है, तो इट इज 62 पे 0, 63 पे अगेन 0, 64 पे 1 मतलब बिटवीन 0 एंड 2, 65 पे अगेन 1, फिर 66 पे इट इज गिवन एज 4. तो जैसे से पॉइंट दिया एक्स और वाई एक्सिस के रिप्रेजेंट करते रहो वैसा रिस्पेक्ट में. फिर 67 पे इट इज गिवन एज 2, फिर 1968 पे इट इज गिवन एज 4 अगेन, then 9, then 7, 6, and here it will be 7 and 10. अच्छा ये 8 नहीं है, फिर ये 9 था, तो इट इज समवेयर यहाँ थोड़ा सा नीचे आएगा, एंड हियर इट इज 10 एंड देन वी हैव 8. पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. एंड नाउ विल हैव टू ज्वाइन with a straight line. Again I am repeating, we'll have to join with a straight line, not with the curve. Freehand curve नहीं, straight line. First दो point को क्या हुआ? स्केल यूज करके करना है. स्केल यूज करके, हाँ. तो हमेशा दो दो पॉइंट जो भी है कंसेक्यूटिव पॉइंट्स उसको ज्वाइन करते रहेंगे. स्केल यूज करके. डन.
This line is known as my trend line. This is my what? Trend line. Okay. Fit a trend line by graphical method to the above data. So this is my first question where we done the question using the graphical method. Any doubts? No, sir. Clear. Okay. Now second question. Use the method of least square to fit a trend line to the data in problem 1 above. Also obtain the trend value for the year 1975. So here we have to use the least square method for the same question. Matlab for the same table we are using. Now we done with the graphical method. Now we are using the last part, that is trend line, using the least square method. But there is a formula. Here I am writing the formula that y is equal to a plus bx, where x is equal to t minus m, where m is called as middle value. This is the formula. Y is equal to a plus bx, where x is nothing but t minus m, where m is nothing but my middle value. And we need अच्छा to, ठीक है. क्या हुआ? T is the time period, and a and b are the constant that you have to find out. And to have the formula to get the value of a and to the value of b, what is a formula? Sum of y divided by n, and b, it is sum of xy upon sum of x square. So this two formula is used to get the value of a and b. याद कर लो. Yes, sir. Done. Done? Shall I move? Yes, sir. Okay. So now we are using the second method, that is least square method. Okay. So in least square method, we have to use the same table, So here I am writing the table, that is year and production. So here I am writing year. Second question. The name is least square method. ओके तो यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड मतलब इक्वेशन फाइंड आउट करना. y is equal to a plus bx. So how will you start? Now see, first write down the values vertically. Here I am writing year, and here I am writing production. Here is always your t. Year. It start from where? 1962 to 72. So it is, I'm starting with 1962, 63, 66, 69, and 72. This represent year, that is time. This is my variable t. Second, the production 00114, 00114, 249 710 8, 249 710 8. This is my y. तो मेरे पास दो वेरिएबल होगा t और y. अब ध्यान सुनो क्या करना है. नाउ तुम्हें टेबल और कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू करना मतलब तुम्हें क्या करना है, x
हाँ, you have to calculate the variable x and the formula for x is t minus m. X t minus m. M is the middle value. So time में middle value क्या देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वैल्यूज है, मतलब मिडल तुम्हारा 6th वैल्यू रहेगा, 1 2 3 4 5 6. दिस इज माय मिडल वैल्यू. ठीक है. x is equal to t minus 1967. Correct? Yes, sir. X is equal to t minus 1967. t minus 9 मतलब मिडल वैल्यू लेस करेंगे, m रिप्रेजेंट मिडल वैल्यू. फिर देन एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर, ये दो कॉलम और बनाएंगे, एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट. t माइनस 1967, तो 1962 माइनस 1967 माइनस 5, 63 माइनस 67 माइनस 4, सिक्वेंशली आते रहेगा. -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5. x इंटू वाई, ये दो कॉलम और बना. व्हाट इज x इंटू वाई? x और y का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 0 0 -3 -2 -4 0 4 18 21 40 एंड 40. x स्क्वायर मतलब x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे. 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 एंड 25. लास्ट में ध्यान सुनो, इसका एडिशन करेंगे, एक्स वाई का एडिशन करेंगे एंड वाई का एडिशन करेंगे. ये तीन वैल्यूज का एडिशन करना है तुम्हें. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग एडिशन. तो हियर आई विल डू द एडिशन. 8 10 7 8 10 7 9 4 2 4 1 1, which is 46. Then we'll do addition of xy. 40 40 80 20 101 plus 18 plus 4, which is 22, which is 123, minus 4 2 6 3 9 9, it is 114. Then here 25 16 9 plus 4 plus 1, which is 55, and double because ऊपर की वैल्यूज और नीचे की वैल्यू सेम है, it is 110. So once we have got these value, then we'll use the formula to get the values of a and b. So a का formula क्या था? a is nothing but summation of y upon n, and b is nothing but summation of xy upon summation of x square. ठीक है. Summation of y 46. What is n? n is nothing but the number of terms in the series. तो तुम्हारे पास कितने टर्म्स दिए अगर मैं काउंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो माय n इज 11. तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूँ, माय n इज 11. तो लेट्स डिवाइड बाय 11. तो 46 डिवाइड बाय 11. तो 11 4 जा 44.
11 4s are 44, 2 0 20, 11 1s are 11, 9 and 11 8s are 4.18. It's 4.18. ठीक है, एंड बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 110, इट इज 110। The summation of x square is 114, sorry. Summation of x square is 110. यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर इन डेसिमल फॉर्म। सो डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो 110 और 114 2 से कैंसिल हो जाएगा, और मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ। 114 डिवाइड बाय 110, 1.036, 1.036। तो वी गॉट ए एंड बी। तो अगर ए और बी मिल गया तो नेक्स्ट टर्म्स में, नेक्स्ट फॉर्मे में वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में। So here we'll write my trend line equation is y is equal to a plus bx. So y is equal to a. What is my a? 4.18, b 1.036 of x. ठीक है, but what is my x? x is nothing but my mid, यहाँ पे मैंने निकाला था what is x? x is nothing but t minus, मैंने x क्या निकाला था यहाँ पे बता दे रहा हूँ, x is my t minus m, that is t minus 1967। यहाँ पे I will substitute x is equal to t minus 1967। ये मेरा हुआ ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हुआ का इक्वेशन, और ये इसमें x की जो वैल्यूज है विच इज t माइनस 1967। तो तुम्हें दो लिखना है, एक तो ये लिखना और एक दूसरा y का टर्म्स लिखना और x का टर्म्स भी लिखना है। ये होने के बाद कभी भी लीस्ट स्क्वायर मेथड में और भी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ ट्रेंड लाइन, वो तो हो गया है। दूसरा, also obtain the trend values for the year 1975, मतलब 1975 में ट्रेंड वैल्यूज क्या रहेगी। जैसे तुम्हारे पास जो सीरीज दिया हुआ है 1962 से लेकर 1972 तक, तो वैल्यूज तुम्हारे पास बढ़ते जा रही है, कम हो रही है, समवेयर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन है। तो सिमिलरली 1975 में क्या प्रोडक्शन या क्या आउटपुट रहेगा, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास, फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया है कि use the method of least square to fit a trend line to the data in problem 1, that is done. Also obtain the trend values for the year 1975। तो 1975 में ट्रेंड वैल्यू क्या रहेगी, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो 1975 में कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो। 1975 में मतलब अगर टी 1975 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहला टी की वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं वर्किंग बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू टी माइनस 1967। सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे, फिर y मिलेगा। तो x की वैल्यू 1975 माइनस 1967, तो x इज इक्वल टू, इट इज 8। अब यही x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ट्रेंड इक्वेशन में, तो अपने को y की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन में डाल देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 4.18 प्लस 1.036 और x की वैल्यू 8। तो जब भी t दिया रहेगा कि किस ईयर में निकालना है, पहले t से x निकालेंगे, फिर x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, एंड दैट इज माय आंसर। तो कितना है 1.0368, 1.036 into 8, the answer 8.2, and then we'll have to add 4.18 and your answer is 12.468, 12.468। बट तुम्हें पता है y जो दिया इन 1000 टन दिया है, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा therefore the trend value for the year 1975 is 12.468 1000 टन। तो यहाँ पे देना इन
क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 1000 tons. So in these way you have to solve trend equation. पूरा मेथड समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर समझ गया। समझ गया इसमें, लेकिन देखो ऊपर जो है ना ट्रेंड लाइन, उसमें थोड़ा सा मुझे जो ग्राफिकल पता है उस पर थोड़ा सा और एक चेंजेस करना है. चेंजेस ये करना है कि जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था दैट zigzag, क्योंकि वैल्यूज कभी ऊपर हो रही, कभी नीचे हो रही, कभी ऊपर हो रही, कभी नीचे, एंड सो ऑन. तो तुम्हें क्या करना है, यूजिंग दिस ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन. बेस्ट फिट लाइन मतलब ऐसी लाइन जो वो पॉइंट्स के क्लोजर है, मतलब पॉइंट्स जो भी रहे उस लाइन के आसपास रहे. तो अगर मैं बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो इट विल गो लाइक दिस. दिस इज माई बेस्ट फिट लाइन, जो मतलब लाइन पॉइंट्स के क्लोज में रहनी चाहिए. दिस इज माई व्हाट बेस्ट फिट लाइन, एंड ऑलवेज बेस्ट फिट लाइन विल हैव टू ड्रॉ विद डॉटेड लाइन. तो ये मेरी डॉटेड लाइन हो जाएगी. तो zigzag के बाद तुम्हें एक और लाइन ड्रॉ करना, दैट इज योर ट्रेंड लाइन. दिस इज योर व्हाट ट्रेंड लाइन. तो ट्रेंड लाइन मतलब इट शुड बी अ लाइन, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विद zigzag. समझ में आया बेस्ट फिट लाइन कैसे ड्रॉ करना है? यस सर समझा। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें दो चीज बताया, ग्राफिकल मेथड बताया जिसपे प्रॉपरली ग्राफ प्लॉट करना है जैसा भी ऊपर नीचे रहेगा, और उसके बाद बेस्ट फिट लाइन जो ड्रॉ करेंगे वही तुम्हारा ट्रेंड लाइन रहेगा. तो मैंने तुम्हें ये सिखाया. देन मैंने तुम्हें लीस्ट स्क्वायर मेथड, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो जिसमें तुम्हारे पास x जो रहेगा वो t माइनस m होता है, और फिर a और b आर द कांस्टेंट जिसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया. अभी थर्ड सीखना मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज में तुम्हारे पास तीन टाइप है. इट्स अ 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, और 5 ईयरली मूविंग एवरेज. तो ये तीन अलग अलग तुम्हें मूविंग एवरेज पढ़ने हैं, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 5 ईयरली मूविंग. जिसमें मैं फिर से बता रहा हूँ 3 ईयरली और 5 ईयरली क्वाइट ईजियर है, 4 ईयरली थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली. चलो हम लोग ये थर्ड टाइप, इसमें क्या निकालना देखो. तो नाउ थर्ड में ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबव डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज. तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज करना है. 5 ईयरली मूविंग, फिर से सेम टेबल यूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दे दिए. इन द थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू ऑब्टेन 5 ईयरली मूविंग एवरेज. 5 ईयरली मूविंग एवरेज, फिर से अगेन सम एक बार लिख देंगे पूरा जो भी है तुम्हारा. 1962 यहाँ पे ईयर, यहाँ पे प्रोडक्शन. ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1962 and 1963 4 5. ठीक है. एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तुम्हारे पास कितना, एक बार फिर से वही सेम सम लिख रहा हूं मैं. इट इज 00114 00114 249,710,8 249,710,8. देखो स्टार्ट कैसे करना, 5 ये भी इजी है. 5 ईयरली मूविंग एवरेज, नाम क्या लिखा है, एवरेज निकालना है, वो भी 5 5 ईयर का, बट मूविंग है. सबका मीनिंग अलग अलग है, ध्यान सुनो. यहाँ पे तुम्हें दो कॉलम और बनाना है.
The first column represent 5 yearly moving total. 5 yearly moving total. और दूसरा निकालना है 5 yearly moving average. 5 yearly moving total and 5 yearly moving average. देखो कैसे निकालेंगे 5 yearly. रूल ये है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ. 5 ईयर है ना, तो 5 ईयर लेंगे. 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर मतलब 0 0 1 1 4, ये 5 वैल्यूज. ये 5 वैल्यूज का मिडिल कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा. तो यहाँ पे वही 5 वैल्यूज का एडिशन लिख देंगे. 5 ईयरली मूविंग टोटल मतलब 5 ईयर का टोटल निकाले हम लोग, तो वो वैल्यूज कौन कौन सी, और बीच में लिखने का मतलब 2 ऊपर छूट जाएगा 2 नीचे. तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी 0 0 1 1 4. ठीक है. अब ध्यान से सुनो दूसरा वैल्यू क्या है. नेक्स्ट ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ. 0 0 1 1 4, ये 5 वैल्यूज का हो गया, मैंने एडिशन बीच में लिखा. फिर नेक्स्ट 5 का, एक छोड़ दो पहला वाला, फिर ये नेक्स्ट 5 का एडिशन आएगा विच इज 0 1 1 4 2, और उसका टोटल यहाँ पे लिखेंगे 2. उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 का, अब 2 छूट जाएगा ऊपर, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट 5 क्या मिलेगा बताओ. मतलब मैंने 0 से हो गया, ये 0 से स्टार्ट कर लिया, ये 1 से स्टार्ट कर लिया. नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से. तो बताओ वैल्यूज क्या मिलेगी. 1 4 2 4 9. 2 4 9, ये 1 भी हो गया खत्म. अब 4 से स्टार्ट करना है. 4 2 4 9 7, ये भी हो जाएगा. फिर 2 से 2 4 7 and 10, and then 4 9 7 10 और 8. ठीक है. तो ये अब खत्म, इसके आगे 5 का सेट नहीं बनेगा. तो ऊपर 2 डैश आ जाएंगे और नीचे 2 डैश आ जाएंगे. ठीक है. चलो अभी सबको ऐड करना स्टार्ट करो. 6 8 12 20 26 32 10 plus 8 18 plus 7 25 25 plus 9 34 plus 4 38. तो मैंने 5 ईयरली मूविंग, अब बोला 5 ईयरली मूविंग एवरेज. एवरेज निकालने के लिए जो तुमने टोटल निकाला उससे को एवरेज करना, मतलब डिवाइड बाय 5 कर देंगे. एंड दिस इज माय ट्रेंड वैल्यू. तो ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी तुमने टोटल निकाला है 5 5 का, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, विल गिव द एवरेज. अरे यहाँ पे एक्चुअली डैश आएगा ना, तो यहाँ पे रहने दो, ऊपर लिख दो दिस इज माय ट्रेंड वैल्यू. ट्रेंड वैल्यू क्या मतलब, यहाँ पे डैश आएगा, नेक्स्ट वैल्यू भी डैश आएगा. अभी यहाँ पे जो आएगा वहां पे एवरेज निकालने के लिए हर एक वैल्यू 5 5 का एडिशन है 5 ईयर का, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे. तो यहाँ पे चाहो तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, इट इज जो भी टोटल आएगा डिवाइड बाय 5. तो 6 डिवाइड बाय 5, 8 डिवाइड बाय 5 1.6, एंड सो ऑन. ऐसे सबको 5 से डिवाइड करना है. 12 डिवाइड बाय 5 2.4, 20 डिवाइड बाय 5 25.2, 6.4,
7.6 और नीचे 2 डैश आ जाएगा, ऊपर 2 डैश और नीचे 2 डैश हो गया। दिस इज 5 ईयरली मूविंग एवरेज। एनी डाउट्स? नो सर। जैसा मैंने 5 ईयरली बताया, मैंने क्या बताया, 3 ईयरली और 5 ईयरली इजी है, 4 ईयरली डिफिकल्ट है, वो अलग मेथड से करना पड़ता है। तो इनकेस अगर 3 ईयरली है, नो इश्यूज, कॉलम वही 4 बनेंगे, ईयर इन प्रोडक्शन, बस 3 ईयरली मूविंग टोटल और 3 ईयरली मूविंग एवरेज आएगा। 3 ईयरली के लिए तुम्हारे पास 3 वैल्यूज का ऐड करेंगे और बीच में लिखेंगे, मतलब ये 3 वैल्यूज लिखेंगे तो इसका बीच यहाँ पर आएगा, तो एक ही डैश आएगा, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज का, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज का। अंडरस्टूड? हाँ सर। एंड देन टोटल डिवाइड बाय 5। तो ये 3 टाइप के सम्स आएंगे। तो 2 टाइप तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, लीस्ट स्क्वायर में कोई दूसरा मेथड नहीं है, और ग्राफिकल में भी कोई दूसरा नहीं, ग्राफिकल तो सिंपल ड्रॉ ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख के दिया है, फोर्थ क्वेश्चन, the following table shows the index of industrial production for the period from 1975 to 1985 using the year 1976 as the base year. Okay, तो मतलब नहीं है 76 बेस, मतलब 76 से स्टार्ट हुआ है और 85 तक गया है। इसमें क्या क्या निकालना है, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द अबव डेटा बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब फोर्थ क्वेश्चन में ग्राफिकल सॉल्व करना है। फिफ्थ में फिट अ ट्रेंड लाइन टू द अबव डेटा प्रॉब्लम 4 अबव द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो मैंने बताया था। और लीस्ट स्क्वायर में हमेशा आगे भी पूछते हैं, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987, ये भी निकालना है। एंड नेक्स्ट ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन प्रॉब्लम 4 यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो मतलब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फोर्थ, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन कनेक्टेड है। तो ग्राफिकल मेथड तो ठीक है, तुम सॉल्व कर सकते हो, इजी है, जस्ट प्लॉटिंग करना है। Now I'm going to start with a fit a trend line to the data in least square method. लीस्ट स्क्वायर मेथड एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑड डेटा रहेंगे तो कैसे करने का और इवन डेटा रहेगा तो कैसे करने का। तो जो उसके पहले वाला सम था उसमें ऑड डेटा दिया था, मतलब वी हैव ऑड डेटा 62 से लेके 72 विच इज 11 डेटा से, बट यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल 10 डेटा दिया हुआ है इवन। तो इवन में क्या चेंजेस करना है, आई विल शो यू हियर। तो जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिखाया है, बताया है, हाँ ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले में चेंजेस क्या करना है मैं बस बता दे रहा हूँ, थोड़ा चेंजेस। तो ये पूरा जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ये जो पूरा लीस्ट स्क्वायर मेथड है, y का फॉर्मूला सेम रहेगा, ए बी का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, x के फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस करना है, बता रहा हूँ क्या। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये फॉर ऑड डेटा है x, और अगर समझो कि इवन डेटा रहा, इफ वी हैव इवन डेटा तो x का फॉर्मूला रहेगा t माइनस एम मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, टी माइनस एम मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब टी माइनस एम मिडल वैल्यू करेंगे, बस आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं व्हेन वी हैव इवन डेटा, बस इतना, एक्स में बस आगे 2 का चेंजेस आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फोर्थ, तो इसमें ग्राफिकल पार्ट तो हो जाएगा, बस जिगजैग प्लॉट करना और फिर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना, जो बेस्ट फिट लाइन रहेगी वही तुम्हारी ट्रेंड लाइन रहेगी। आई एम सॉल्विंग द फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें तुम्हारे पास इवन डेटा दिया तो कैसे करेंगे, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन द प्रॉब्लम 4 अबव बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मेथड यूज करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड में, सबसे पहले ईयर एंड इंडेक्स, हमेशा पहला वाला तो ईयर रहेगा ही रहेगा, एंड दूसरा इंडेक्स, कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स, प्रोडक्शन, आउटपुट, इनकम, कुछ भी। ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 76 एंड 85, 1976, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. ठीक है, ओके. वैल्यूज इंडेक्स विच इज माई 0, 2, 3. इसमें अच्छी बात है कि वैल्यू सब छोटी रहेगी, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी. 5, 6, 7 एंड 10. तो जो ईयर रहेगा दैट इज माई टी, जो इंडेक्स रहेगा दैट इज माई वाई. आई विल कैलकुलेट एक्स विच इज टी माइनस एम. बट यहाँ पे इवन डेटा दिया हुआ है, काउंट करेंगे 10 वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. तो यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा बस. आगे कैलकुलेशन के लिए विल मेक कॉलम एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, वो फिक्स रहेगा. सबसे पहले एम ढूंढेंगे. एम इज माई मिडल वैल्यू. तो मुझे बताओ ईयर में मिडल वैल्यू क्या दी है, जरा सोच के बोलो. व्हाट इज माई मिडल वैल्यू? 80 या फिर 81. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ से 4 वैल्यू जाएगी और ऊपर से 4 वैल्यू जाएगी. इसका मतलब वैल्यूज 80 और 81 के बीच में आएगा, हाँ, बराबर. तो 1980 और 1981 के बीच में कौन सी वैल्यू रहेगी एग्जैक्टली? 1980.5 रहेगी. दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बराबर. और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? yes sir. अब जरा लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बार बार. तो यहाँ पे पहले टी की वैल्यू 1976 डालूंगा तो एक्स मिलेगा. 1977 डालूंगा तो एक्स मिलेगा. 1978 डालूंगा तो एक्स मिलेगा. एंड इट विल बी सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग. इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स एज 1976, तो 76 माइनस 1980.5 विच इज माइनस 4.5. माइनस 4.5 का डबल करेंगे तो इट विल बी -9. फिर 77 डालेंगे तो 77 माइनस 80.5 -3.5. उसका डबल करेंगे तो -7. तो इसका मतलब ये दो दो के गैप में आता रहेगा. 7, फिर 5, 3, -1. फिर 81 डालेंगे तो 0.5 होगा और डबल करेंगे तो 1. फिर 3, 5, 7, 9. तो 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब यही था कि जो डेसिमल आ रहा था 0.5 वो मैंने रिमूव कर दिया. बाकी अभी इसका कहीं यूज नहीं, बस अभी कैलकुलेशन जैसे नॉर्मल करते थे वैसे ही करना है बस. x इंटू वाई, दैट इज जो x तुम्हारा आया उसको मल्टीप्लाई करें वाई, दैट इज 0, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 7 7 जा 49 एंड 10 9 जा 90. x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 5, 9 1, 1 9, 25, 49 and 81. We'll do the same way, addition of ये और sum of y. ये तीन वैल्यूज का एडिशन करेंगे. लेट्स डू इट ऑन कैलकुलेटर. एडिशन पार्ट तो हो जाएगा. तो पहला 0 2 3, 2 3, 3 2 4, 3 2 4, 5 6 7 10, 5 6 7 10, which is 42. Now we'll do the next positive value. 90 49 30, 90 49 30, 15 4, -2, -9, -15, -14, which is 148. फिर स्क्वायर ऐड करेंगे.
1925, 1925, 49, 81 इंटू 2 कर देंगे डबल, तो 165 का 330. दिस इज माई 330. सो वंस वी आर डन विद दिस, फिर ए और बी का फॉर्मूला सेम है, सम ऑफ y अपॉन n, where n number of term is 10, and b sum of xy upon sum of x square. Sum of xy upon sum of x square. So sum of y, which is 42, divided by number of terms 10. So a directly 4.2, and b sum of xy 148 divided by 330. तो तुम्हारे पास कितना आएगा b? 148 divided by 330. 148 divided by 330. 0.448. तो 0.448. 3 डेसिमल तक लिखा मैं. तो फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो y इज इक्वल टू a 4.2 प्लस b 0.448 x, वेयर x की वैल्यू क्या है? x इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ t माइनस मिडल वैल्यू कितनी थी? 1980.5. तो यहाँ पे तुम्हारे पास y और x के दोनों एक्सप्रेशन आ गए. नाउ दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट सम ट्रेंड वैल्यू. ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ईयर का पूछा, देख लेते एक बार. फिफ्थ क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987, मुझे 87 का निकालना है. इंडेक्स क्या रहेगा? तो मतलब बेसिकली टी की वैल्यू दी है 1987. तो पहले हम लोग एक्स निकालेंगे, फिर वाई. एक्स में पुटअप करो, तो 2 टाइम्स ऑफ 1987 माइनस 1980.5, तो इट विल बी हाउ मच? 6.5 का डबल 13, मतलब एक्स की वैल्यू तुम्हें 13 सब्स्टिट्यूट करना है. तो वाई फाइनल आंसर निकालना है 4.2, 0.448, x की वैल्यू 13. So let's start substituting. It is 0.448 into 13 and plus 4.2, 10.024. So y is equal to 10.024. फिर आंसर लिख देना कि द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987 is 10. The index number for the year 1987 is 10.024. Any doubts? No, sir. ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करके रखना तुम्हें. ठीक है, और फिर नेक्स्ट हाँ टाइम इसके सर. आगे हम लोग कंटिन्यू कर देंगे. ओके हाँ सर. ओके, बाय बाय सर. बाय डियर.